Hey guys, good afternoon. This is Rajiv from Trinity International School, and today we are going to do maths that would be for class 2, and this would be a chapter number. Just give me 1 second. This would be chapter number 6. We have already done first half, that is question number 1 and 2. Today, what we are going to do is we are going to start with question number 3, which is a very simple exercise for you people to count and write. It says question number 3, that's count and write the number of lines in each picture. Anna, when I'm talking about counting, you need to understand straight line. These are called vertical lines or standing line. Clear? This is a standing line. If I change it, this is sleeping line. हम लोग सोते हैं ना बेड पे कैसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं ना. So basically these are sleeping line. अब मैं बोलता हूँ चलो get up, तो आप लोग उठोगे तो आप लोग खड़े हो जाएगो. And these are standing line. Clear? So we have standing line, we have sleeping line, और जब हम लोग लाइन टेढ़ा करते हैं, those are called slanting line. Now when I say slanting, it could be any pattern. That is, this is from my left to right. I can take one line which could be this way. Anna, sleeping is horizontal line, standing is vertical line. Anna, जो खड़ा है those are vertical line, जो सोया है those are horizontal line. इसको छोड़ के बाकी थोड़ा भी टेढ़ा रहेगा लाइन, those are called slanting line. So अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो we have to write slanting line कितना है टेढ़ा. देखो एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये. So there are two slanting line and horizontal line पूछा है. तो यहाँ पे horizontal line है ही नहीं. There is a standing, or you can say a vertical line. So I'll write here vertical lines 1, and this is nil. Clear? So I have one vertical line, I have two slanting line. जब मैं line बोलता हूँ तो line has to be continuous. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया दिस लाइन स्लांटिंग. अगर ये स्लांटिंग रहेगा तो ये सीधा 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 जाएगा, बट क्या हुआ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है. दैट मीन्स यहाँ से दूसरा लाइन स्टार्ट हुआ है. सो देर आर टू स्लांटिंग लाइन्स एंड वन वर्टिकल लाइन. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर बी, दे आर आस्किंग वर्टिकल. वर्टिकल मतलब सीधा. देखो दिस इज वन लाइन, दिस इज द सेकेंड वन. सो देर आर टू वर्टिकल लाइन्स. हॉरिजॉन्टल मतलब सोना, स्लीपिंग लाइन. देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 horizontal line which is also known as sleeping line. Then we are talking about slanting. यहाँ पे कोई भी टेढ़ा लाइन है क्या? नहीं. We have 2 vertical and 3 horizontal line. So slanting line nil. Curved line, curved line देखो continuous है, इसमें कुछ डिस्टर्ब हो रहा है नहीं. So there is one curved line. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब स्ट्रेट. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कौन सा है इसमें? देयर इज वन वर्टिकल लाइन. नाउ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सोना, स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, देयर इज वन स्लीपिंग लाइन हियर एंड द रेस्ट वुड बी स्लांटिंग लाइन. दिस इज 1 2 3 4. सो वी हैव 4 स्लांटिंग लाइन. Now if you see question number D, there is curve line. एक curve line आया और एक straight line. So straight line is 1, curve line 1. If you see question number E, slanting. Slanting मतलब टेढ़ा. तो देखो ये एक टेढ़ा है. This is the second one. This is the third one. This is the fourth one. So there are 4. An horizontal line 1 2 3.
क्लियर। यहाँ पे देखो कर्व लाइन कितना है, एक कर्व लाइन, कर्व मतलब जो लाइन सीधा नहीं है, टेढ़ा जाता है। तो देखो ये पूरा टेढ़ा 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 ओके, इट मीट्स एट अ पॉइंट एंड इट मेक्स अ सर्कल. सो दिस इज अ कर्व लाइन, दैट इज वन कर्व लाइन, and there is a straight line, that is one straight line. Yep. So I hope you people found it very easy. What we are going to do is we are going to start with question number 4. It says draw line as directed using a ruler. So what I have to do is, yep, so it says draw line as directed using a ruler. I never had a ruler, so I got one ruler right now. They're saying horizontal. Horizontal matlab sona, so I need to draw a horizontal line. Here they are saying vertical. Vertical matlab standing line. Here they are asking us to draw a slanting line. This is how you're going to do it. Horizontal line, vertical line, slanting line. Okay? Now what we'll be doing is we'll be starting with question number 5. It says name the shapes one can get by tracing the base of the given object. When I say base, base मतलब for an example अगर एक building है ना, बड़ा सा building है, just give me 1 second, I'll get a paper. हाँ, सपोज अगर ये बड़ा सा बिल्डिंग है, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. सो जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बेस. बेस के ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ा है. अगर मैं बेस खींचूंगा तो बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉटल, ये बॉटल खड़ा है, क्यों? क्योंकि it has a base. This is what we call the base. Clear? So base है बोल के ये बॉटल खड़ा है. For an example, if I'm talking about a marker bottle, हाँ ना, मेरे पास ये मार्कर का बॉटल है, ये खड़ा है, हाँ ना. So क्यों खड़ा है? क्योंकि इसका बेस है. It has a base. That's the reason it's standing. So when it says base मतलब नीचे वाला पार्ट. So when I'm talking about a bottle, पानी के बॉटल को जैसे आप उल्टा करोगे तो क्या दिखेगा आपको? कौन सा दिखेगा? यू विल फाइंड अ सर्कल. सो द बेस ऑफ द बॉटल इज सर्कल. क्लियर? फॉर एन एग्जांपल अगर ये बॉटल है, हाँ ना, इसको जैसे मैंने उल्टा किया तो व्हाट डू आई सी हियर? सर्कल. सो द बेस ऑफ द बॉटल इज सर्कल. दिस इज अ कार्टन बॉक्स. कार्टन बॉक्स जैसे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं या फिर पापा कुछ बहुत सारा सामान बॉक्स में डाल के लेके आता है, तो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है, दोज आर लाइक वी कॉल देम कार्टन. इसको अगर मैं टर्न करता हूँ तो देखो इसमें सब साइड सेम दिख रहा है. सो द बेस ऑफ दिस बॉक्स मतलब बेस मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होगा इसका? स्क्वायर. अगेन दिस इज अ कोन. हम लोग आइसक्रीम खाते ना, आइसक्रीम का कोन. फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये ऐसे आइसक्रीम है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द कोन. इसको उल्टा कर दिया, अगर मैंने सीधा किया तो मुझे क्या दिखेगा इधर? सर्कल. सो द बेस इज सर्कल. अब कोई बुक है, नोटबुक को मैंने अगर उल्टा करके देखा, सो व्हाट डू आई फाइंड? द बेस ऑफ द बुक इज, आई एम सो सॉरी, इट हैज टू बी कैपिटल, रेक्टेंगल. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये बुक है, ये बुक को मैंने खड़ा किया, बाद में अगर मैं घुमा के देखता हूँ तो बुक क्या कौन सा शेप है? इट्स शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. Clear? Now, if you see this is a tent. हम लोग अगर पिकनिक में जाते हैं किधर, so normally we use a tent. अगर ये मैं टेंट को उल्टा किया, what do I see is again it is a four-sided shape which is rectangle shape. क्यों? क्योंकि सपोज अगर टेंट ऐसा है और टेंट को जब मैं उल्टा करूँगा तो मुझे ऐसा शेप दिखेगा, रेक्टेंगल शेप दिखेगा. When I'm talking about compass box, for an example, अगर तुम्हारे पास compass box है, हाँ ना, मेरे पास compass box नहीं है, तो मैंने क्या किया? सपोज AC का रिमोट, compass box यही शेप में होगा. तो जैसे मैं compass box को उल्टा करूँगा तो what do I see is
रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड सेम. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. क्लियर? व्हेन आई से बेस मतलब नीचे वाले पार्ट पे ध्यान करना है. सपोज अगर बॉटल है तो बॉटल को इमेजिन करो कि घर पे बॉटल है और उसको आपने उल्टा कर दिया तो आपको कौन सा शेप दिखेगा? सर्कल. अगर पापा ने कोई बॉक्स लाया, इमेजिन करो बॉक्स को उल्टा किया तो कौन सा शेप दिखेगा? स्क्वायर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोन को उल्टा किया तो मुझे कौन सा शेप दिखेगा? सर्कल. कोई भी एक नोटबुक ले लो आपका और उसका साइड उल्टा करके देखो, यू विल फाइंड अ रेक्टेंगल शेप. द सेम गोज फॉर टेंट. You will get a rectangle shape and the compass also will give you a rectangle shape. So with this we are done with question number 5. What we are going to do is we will be starting with question number 6. It says name the shapes of the following object. Also name the lines straight of curve of which they are made up of. मतलब भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, मुझे नाम देना है हर एक ऑब्जेक्ट को और मुझे ये बताना है कि कौन से लाइन से बना है. सीधा लाइन क्या टेढ़ा? स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन, वो कैसे भी हो सकता है. द लाइन कुड बी दिस वे, द लाइन कुड बी दिस वे और द लाइन कुड बी दिस वे. दैट मीन्स स्टैंडिंग लाइन which is also called as vertical line, sleeping line which is also called as horizontal line, slanting line. ये सब लाइन देखो स्ट्रेट है. अगर मैंने ऐसा किया दैट मीन्स these are curved. This is a curved line, right? So when I'm talking about question number 6, the first shape is square क्योंकि इसके सब साइड सेम है. To be on a safer side, what I'll do is I'll be measuring it. So this is 2 centimeter. देखो 0, 1, 2, 2 centimeter. 0, 1, 2, 2 centimeter. 0, 1, 2, 2 centimeter. 0, 1, 2, 2. So all sides same. This would be square. और इसमें कोई भी लाइन टेढ़ा है क्या? टेढ़ा मतलब कैसा? ऐसा घूमने वाला लाइन नहीं ना. इट इज़ मेड अप ऑफ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है. अब यहाँ पे देखो दिस इज अ राउंड शेप. दैट मीन्स इट्स सर्कल. और देखो ये लाइन सीधा जा रहा है क्या? नहीं, सीधा लाइन तो ऐसा रहेगा. ये देखो टेढ़ा 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 टेढ़ा. Curve, it takes a curve on every point and meets at the same point where it started. है ना? जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे वापस आ रहा है घूम के. So basically these are curved line. डोर, अपने आप घर पे डोर है ना. अब डोर कहाँ से भी ऐसा राउंड है क्या? नहीं, सब साइड से डोर का क्या है? सब साइड स्ट्रेट है. स्ट्रेट 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 स्ट्रेट. सो इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. और देखो ये साइड कितना है? फॉर एन एग्जांपल दिस इज 1.5, 3, 1.5 मतलब ऑपोजिट साइड सेम है. दैट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगल. इफ यू हैव ऑल साइड सेम इट्स स्क्वायर, ऑपोजिट साइड सेम इट्स रेक्टेंगल. नाउ दिस इज बेसिकली ट्रायंगल. हाँ ना, मैंने लास्ट टाइम सीखा है ट्राई मीन्स 3 साइड है. सो इट्स कॉल्ड ट्रायंगल. और ये जो सब लाइन स्ट्रेट जा रहा है, देखो ये लाइन स्ट्रेट गया है, ये भी लाइन देखो स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है. सो इट्स मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे देखो स्केल में से कोई भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, मतलब राउंड जा रहा है. दिस इज कर्व्ड. सो इन दिस वी गॉट वन राउंड सर्कल इज बेसिकली मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन्स. When I'm talking about square, rectangle, triangle, they are made up of straight lines. Yep. So with this we are done with this chapter. Now what I would request you is there is something called test yourself. That's page number 88. You need to practice on your own, and you need to draw a rough sketch of the given figure. तो तुम लोग को rough sketch बनाना है. इसमें देखो पहले क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाना, उसके बाद ये सीधा ट्राइंगल, अभी उल्टा ट्राइंगल बनाओ. इन दिस ऑल्सो आई नीड टू ड्रॉ रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल और इस रेक्टेंगल में ज्वाइन कर ट्राइंगल. क्लियर? सो देखो दिस इज वन रेक्टेंगल आई हैव. रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बन गया.
एक सर्कल आ गया और एक सेमी सर्कल. इसमें भी I need to draw one circle, then rectangle, and then one circle. I hope you people will find it very easy and you would enjoy doing this. So humble request for all of you to please practice this, and if you have any doubt, please WhatsApp us or let us know. So with this we are done with chapter number 6, I believe. With this we are done with chapter number 6, the geometry. Yep. So please make sure you do repetitive practice of this chapter. Thank you for your time. You all have a good day.